A very good morning to everyone. Today we are going to discuss the application of matrices with the help of Excel. So now see the question here is saying that the annual sales of the three products XYZ in three different markets are given below in the form of a matrix. And the first part is asking you to find out the determinant of the above matrix. So first let's write down this matrix in our Excel file so that we can perform the operations. Now, once you are done with this thing, the next step is to find out the determinant. In order to find out the determinant, the formula that we have to use is equals to m determ, and then एरे क्या है, इस मैट्रिक्स को आपको सेलेक्ट करना है, पूरे मैट्रिक्स को, close the array with the help of bracket, and then just press enter to find out the determinant of a, which is coming to 100. तो ये है हमारा first part of the question is done. Now see, the second part of the question is asking you to find out the transpose of the above matrix. Okay, so now in order to find out the transpose of A, अब देखो क्योंकि ये मेरा मैट्रिक्स A है वो 3/3 का है, तो जो मेरा ट्रांसपोज ऑफ A है दैट विल ऑल्सो कम एज अ 3/3 मैट्रिक्स. तो आपने क्या करना है, आपने एक सेल सेलेक्ट ना करके आपने 3/3 के जो सेल्स हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं. Once you have selected these 9 cells, then you need to write down the formula. Formula is equal to transpose. आप फर्स्ट 2-3 लेटर्स टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही ये नीचे फॉर्मूला दिखा देगा. ठीक है, सो ट्रांसपोज अगर आपको ए का निकालना है तो फॉर्मूला इज इक्वल टू ट्रांसपोज. देन अगेन यू नीड टू सेलेक्ट दिस मैट्रिक्स, close the brackets, and this time you have to press shift control plus enter simultaneously. I am repeating again, you need to press control plus shift plus enter to find the answer. अब देखो यही सेम चीज़ मैं तुम्हें फिर से करके दिखाती हूँ, लेकिन इस बार मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगी तो वैल्यूज़ नहीं आएगी. मैंने 3/3 के जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करा. आई एम अगेन राइटिंग दिस फॉर्मूला इक्वल्स टू ट्रांसपोज, selecting this array again, closing the brackets, and if I just press enter I will get something written like this. So जब भी आप मैट्रिसेस यूज कर रहे हो, मैट्रिसेस के अंदर चाहे आप मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे आप मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल रहे हो, हर जगह पे आपने यूज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर. हाँ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जब हमने यूज करा, यहाँ पे तुम सिंपल एंटर यूज करो या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर यूज करो, इट डजेंट मैटर. Okay, so now moving on to the next part. The next part is talking about the inverse of the matrix A. So again, अब देखो क्योंकि मेरा A जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, तो जो मेरा इन्वर्स आएगा वो भी 3/3 का आएगा. अगेन मैं क्या करूँगी, 3/3 जो सेल्स है उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगी. ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू m inverse, m stand for matrix. ठीक है,
Again, what you need to do is you go with the same thing, select the matrix A, close the brackets, and again press Ctrl plus Shift plus enter. So this is the inverse of A that you will be getting as your answer. Here also I have used the same command, that is Ctrl plus Shift plus enter. Now let's move on to the next part of the question. अब देखो अगला पार्ट आपको क्या बोल रहा है. अगला पार्ट आपको पूछ रहा है कि क्या टोटल रेवेन्यू होगा ईच मार्केट के अंदर if the sales price per unit of X, Y and Z are given, that is 3, 2 and 1. Okay, it is 3, 2 and 1. If I shift it a little bit here, you will be able to see. अब देखो कैसे निकाला जाएगा. यहाँ पे मेरे को ये पता है कि एक्स वाई जेड के कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं जो मैं मार्केट 1, 2 और 3 के अंदर सेल कर रही हूँ, और मुझे ये भी गिवन है कि एक्स वाई जेड की पर यूनिट का प्राइस कितना है. तो सिंपली अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस मैट्रिक्स ए को विद अ मैट्रिक्स बी दैट आई एम क्रिएटिंग नाउ, दैट इज 3, 2 and 1. सिंपल मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. अब यहाँ पे देखो जो मेरा मैट्रिक्स ए है दैट इज ऑफ द ऑर्डर 3 into 3. माई मैट्रिक्स बी इज ऑफ द ऑर्डर 3 into 1. इस ऑर्डर का मतलब क्या है? द फर्स्ट लेटर, the first digit 3 is representing the number of rows. Number of rows here in B matrix are 3 and number of column in this B matrix is 1. So order क्या बन गया? 3 into 1. Similarly in matrix A there are 3 rows and there are 3 columns. I am also writing out here so that in case if you have any confusion it gets cleared up. अब देखो जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक रूल क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक मस्ट मैच द नंबर ऑफ रोज ऑफ द अदर मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं. ठीक है. सो नाउ सिंस इट इज मैचिंग, तो जो फाइनल आपका मैट्रिक्स बनेगा वो आपका बनेगा 3 into 1 का. किस ऑर्डर का बनेगा आपका मैट्रिक्स? 3 into 1 का. मतलब 3 रोज हो जिसके अंदर और एक कॉलम हो. तब जो मैं फाइनल सेलेक्ट करूंगी टोटल रेवेन्यू के अंदर अपना सेल्स, दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर 3 into 1. ओके. नाउ आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला. फॉर्मूला दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है? m मल्ट ओपन द ब्रैकेट्स. एरे 1 का मतलब क्या है? मैट्रिक्स 1 को सेलेक्ट करो जो इस केस में मेरा है A. एरे 2 का मतलब क्या है? मैट्रिक्स 2 को सेलेक्ट करो. ठीक है. क्लोज द ब्रैकेट एंड अगेन प्रेस Control plus Shift plus enter simultaneously. So this is the total revenue that has been earned in the 3 markets. ठीक है. तो मार्केट 1 में जो टोटल रेवेन्यू हुआ दैट इज 49 रुपीज. मार्केट 2 में टोटल रेवेन्यू 30 रुपीज एंड मार्केट 3 में भी जो टोटल रेवेन्यू अर्न करा है हमने आफ्टर सेलिंग दैट इज 30 रुपीज. आई एम रिपीटिंग अगेन, जो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम थ्योरी में करते हैं सिमिलरली मैंने यहाँ पे करा है,
बस आपको ये देखना है कि जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हुई तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा। सो यहाँ पे जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 3 into 1 का। वाई? बिकॉज द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स 3 एंड द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स that is 3 that gets cutted up, तो जो बच जाएगा वो रह जाएगा 3 and 1। सो 3 into 1 का होगा मेरा मल्टीप्लाई वाला मैट्रिक्स। So that's all in this simple question of matrices. I hope you are able to understand now how to calculate the determinant of A, transpose of A, inverse of A, and how two matrices can be multiplied by each other. Okay, so now in this question only I am just adding a new part. For example, अब देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है ए, आई एम जस्ट टेकिंग इट डाउन एज इट इज। ओके, एंड नाउ सपोज I write this B matrix in this form 3 2 and 1। अब देखो 3 2, अब जिस ऑर्डर में मैंने इस B मैट्रिक्स को लिखा है it shows that I have one row and I have 3 columns। ठीक है, 3 कॉलम है मेरे पास और रो जो है वो मेरी एक ही है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती पॉसिबल? क्योंकि जो कॉलम है मेरे फर्स्ट मैट्रिक्स का दैट इज नॉट मैचिंग टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक नेसेसरी रूल है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी हिसाब से आपने अपने मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करनी है मल्टीप्लिकेशन में कि वो पॉसिबल हो जाए। नाउ a into b is not possible because column of first matrix A is not equal to the order to the row of matrix B। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉलम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू दी रो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। सो a into b is not possible, but is b into a possible? Is b into a possible? Yes, b into a is possible. Why it is possible? I'll show you. अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, चलो b इंटू ए कैसे पॉसिबल है। b को अब मैंने क्या रख दिया है, आगे रख दिया है, और a now has become my second matrix। ठीक है, अब देखो, अब जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है b, उसके कॉलम का ऑर्डर है 3, और जो मेरा सेकंड मैट्रिक्स है a, उसके रो का जो ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो 3। सो कॉलम order of first matrix is matching to the row order of third matrix, so this multiplication is basically possible। So b into a is possible, but a into b is not possible। अब देखो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मेरा b into a का,
that would be of the order 1 into 3। तो यहाँ पे मैं तुम्हें b इंटू ए भी मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। किस ऑर्डर का आएगा? 1 इंटू 3, मतलब 1 रो एंड यू विल हैव 3 कॉलम्स। तो उतने ही सेल्स मुझे सेलेक्ट करने हैं 1 इंटू 3 ऑर्डर के। इक्वल टू अगेन यूजिंग एम मल्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें कौन सा है? बी, एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज ए। क्लोज द ब्रैकेट्स, अगेन प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। So again you have got your values. All right.